कैन यू हाईलाइट सम कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स और कितनी ऑफन करना चाहिए और लोग कितना ओवर यूज करते हैं उस चीज का? ओके बहुत कॉमन जो है विच इज़ वाइटनिंग, ब्लीचिंग ऑफ टीथ. आई विल नॉट अननेसेसरीली रेकमेंड इट. अगर आपके दांत थोड़े येलो है with age which is right normal, unless and until you have something, an event coming in, कुछ है, तो I would say do undergo this chemical process. At the end of the day, it's a chemical. Veneers का same concept है. Obviously, they are not fake nail जितने ऐसे नहीं है. They're of very good quality. Okay. And बहुत minimum tooth structure को हम थोड़ा cut करते हैं. आपका जो tooth है, we just cut it like 1 mm or 0.5 mm. And then we stick this veneer onto them. And that's when you get like that perfect smile which Sonam Kapoor has. Priyanka Chopra has. These people have done veneers. So And this is not whitening. हाय एवरीवन. सो आज का पॉडकास्ट है डेंटिस्ट के साथ. वो बहुत साल से प्रैक्टिस कर रही है अपने फील्ड में. शी इज डॉक्टर नम्रता अय्या. हर क्लिनिक इज इन अंधेरी. हम लोग भले ही रिसेंटली मिले हैं बट द अमाउंट ऑफ फीडबैक आई हैव सीन इन हर clinic and the way she practices, she's beautiful in her job and as a person she is beautiful, a very evolved soul as well, spiritually inclined. So हमारी काफ़ी बातें हुई है IQ पर, जैसे डेंटल प्रॉब्लम्स, मिथ्स अराउंड डेंटल प्रॉब्लम्स और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स और बड़े प्रॉब्लम्स एज वेल कि कैसे डील कर सकते हैं. तो जाइए आगे का पॉडकास्ट देखिए सब कुछ जानने के लिए एंड मिलते हैं. Okay, so tell me a little bit about your study, how it has made you who you are, like how you were before and how you are now after completing the dentistry. Okay, so I would call myself a complete introvert, which has Okay. always been an introvert. But after coming to college, you get exposed to so many people, and there are so many new things, from practicals to dissection to Right. everything. There's everything new, and you have partners. You have to make sure that तुम्हारी उनके साथ जमे. हाँ. Right. So करना ही पड़ा. At the end of the day, I had to interact with almost all the teachers. All the Damn, that students. would have been. And that is not me. That is absolutely not me. But मुझे लगा कॉलेज तक ही है, हो जाएगा, कर लेंगे, खत्म. That was just a That start. was just a start. Then when I started. Can you highlight some 2-3 cosmetic procedures और कितनी often करना चाहिए और लोग कितना over use करते हैं उस चीज़ का? Okay. So बहुत common जो है which is whitening, bleaching of teeth. Oh right. मुझे भी actually करवाना था, अभी तक किया नहीं है. Nice. So I will not unnecessarily recommend it. अगर आपके दांत थोड़े येलो है with age which is right normal, unless and until you have something, an event coming in, or कुछ है, तो I would say do undergo this chemical process. At the end of the day, it's a chemical. अच्छा. हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होता है उसमें. Okay. Concentrated. So if it's required, yes. Otherwise, on regular basis, I will not advise you. साल में से एक बार कर लिया, more than enough. Okay. It's more than enough. क्योंकि that does not stay. मतलब आपको वो रिपीट करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारा डाइट ही ऐसा है कि हम हल्दी खाते हैं, कॉफ़ी है, टी है. So your tooth will take that stains. तो मैं जनरली वाइटनिंग, येस, इफ आई सी हाँ कि बहुत ही येलो हो गया आपके दांत, देन आई वुड से येस, थोड़ा 2 शेड्स लाइटर हो जाएंगे आपके दांत. इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट प्योर वाइट, But that will look very different also. या सो दे विल गेट फ्यू शेड्स लाइटर. अच्छा. सो मैं रेकमेंड करती हूँ वंस इन अ ईयर यू कैन गेट वाइटनिंग डन. And people, and how आपने मिसयूज करते हुए कैसे देखा? मिसयूज भी नहीं, मतलब ओवर यूज. हाउ, कितना ओवर यूज ये करते तो फिर लोग? वो जो किट्स आते हैं, होम ब्लीच किट्स आते हैं. अच्छा. हाँ. So they just have a tray. You put that gel, हाँ. the liquid in it, and wear those
उससे कुछ फर्क पड़ता है, आई विल नॉट से लाइक नहीं पड़ता, टू सम एक्सटेंट यस, बट जो इन ऑफिस जो ब्लीच होता है विच वी डू इन द ऑफिस, राइट, इट डजंट वर्क दैट वे. सो बट पीपल कीप यूजिंग इट. एट द एंड ऑफ द डे वो भी केमिकल है, उसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी कम है, बट है तो वो. एंड इट्स नॉट अंडर आर गाइडेंस. रियली. आप वो ले रहे हो मेडिकल से, यू ऑर्डरिंग इट ऑनलाइन एंड जस्ट वेयरिंग इट एंड ट्राइंग इट फॉर योरसेल्फ. एंड वहाँ पे डॉक्टर सर्टिफाइड लिखा होता है. सो मिसलीडिंग यार. It is. Oh And my God. baking soda or nimbu, that's like the best. People will just try it out to make their teeth white. It doesn't work. It doesn't work. Oh my God. और फिर वो रिजल्ट जो वो लोग बताते हैं, वो it's all edited. It's all edited. That never works. my God. And if it works, please tell me. Do try it and tell me. It doesn't. I'm not gonna lie. NGL. Okay, sorry. Gen Z's. Anyways, मैं ट्राई करने वाली थी ये चीज. Seriously, I wanted to try this, but मैंने वो किया नहीं. Thank God. So it is like थोड़ा सा abrasive होता है. If you see when you take baking soda in your hand, थोड़ा सा you can feel that coarseness of it. तो वो coarseness से थोड़ा सा आपको जो extrinsic stains है थोड़े बहुत वो निकल जाएंगे. आपका दांत का कलर चेंज नहीं होगा. That will not help. People are like transformation. पहले ये थे फिर ये बन गया. Okay, so this was regarding the whitening teeth of bleaching. So I would like to ask कि जो जिनका काम है on cameras or people who are like celebrities, so do they overuse sometimes teeth whitening या फिर? नहीं, I think what these celebrities do is undergo something called as veneers. Veneers. Yeah, veneers or laminates. So this concept? So these are my nails. I don't like the shape of it. What do we Nails. do? What do we do? We put the fake nail on. Okay, got so it. laminates और veneers का same concept है. Obviously they are not fake nail जितने ऐसे नहीं है. They're of very good quality. Okay. And बहुत minimum tooth structure को हम थोड़ा cut करते हैं. आपका जो tooth है, we just cut it like 1 mm or 0.5 mm. And then we stick this veneer onto them. And that's when you get like that perfect smile which Sonam Kapoor has. Oh, okay. Yeah, Priyanka Chopra has. So these people have done veneers. So and this is not whitening. Acha. And this stays for a very long time. This stays for a long time. Yes. कभी हो सकता है when you eat something hard on your front tooth तो कभी निकल जाए. But generally it stays for good 8-10 years. And then how often, what is the process of putting veneers and... So you, like if you come to me today, we will be cutting the tooth around 0.51 mm तक cut करके. We'll take a measurement. Through नीचे से you cut it or superficially? The topmost portion of your tooth, we'll cut it. Like जैसे आपका ये nail है, the same way. Like consider this is as your tooth. हाँ. So आप इसको ऐसे cut करोगे. अच्छा पूरा. Oh my God. Like पूरा, the whole surface. तो ही तो उस पे जाके बैठेगा, right? But then इसके बाद then you have to put veneers. Always. Yes. You can't leave it because फिर वो हाँ. Oh my God. Okay. So मैं generally I will not recommend this as well. If you have like good set of teeth, it's not required. But किसी के क्या होते हैं fluorosis. I mean, I'm sure you must have heard of कि सब कुछ गाँव में ना बहुत फ्लोराइड होता है. Water in the well. हाँ, right, okay. तो वो जब वो पानी पीता है, like when the mother is pregnant and she drinks water, the kids are born with fluorosis. जहाँ पे आपको दांत पे ना white color के spots दिखते हैं. Okay, right. Yeah. अच्छा. So when there is something like fluorosis, आपका smile बहुत ही disturbing, like it's very disturbing for the person. तो तब फिर हम उसे veneers या laminates दे देते हैं to just give that white look, the natural look of the teeth. Yeah. Wow. Veneers मैंने सुने थे but I didn't know the exact concept of हाँ.
Wow, okay. So these are two usually लोग करते हैं. हाँ, veneers, laminates Okay. is what generally people do. And anything else like or common? Crowns भी देते हैं, like cap covering the whole tooth. हाँ, okay, right. But that is generally for the posterior teeth. अच्छा, okay. हाँ, or if the damage is too much, then we cover it with the whole crown. But if your tooth is healthy enough, then laminates, veneers work well. Okay. Also people do this जैसे black gums है आपके, pigmented gums है, so they do this surgery with laser which will change the color of your gums, make it more pinkish. Okay. हाँ, the superficial layer of your gums is scraped off. Oh, wow. Yeah, with laser. Okay. पहले तो manually होता था. Is it painful? Anesthesia, under anesthesia होता Okay. है. So you will not come to know and you will be under medication for few days. So जब तक एक वो न्यू लेयर ऑफ आ जाता है ऑन गम्स, देन इट्स लाइक द पिंक न्यू हील्ड. अच्छा. And what is the healing time? एक 5 to 7 days. अच्छा. 5 to 7 days. A week's time you can consider for healing. Okay. Are there bleeding gums after that? No. नहीं ना. अच्छा. इसका उसका just रिलेशन starts नहीं है. दिस healing. इज अगेन सुपरफिशियली होता है. अच्छा. हाँ. Okay. Wow. Amazing. Okay, so ये तो हुए कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स. अगर कोई बहुत हार्ड चीज़ें खा लेते हैं और उन्हें पता नहीं है कि कैविटी है, किसी के कैप्स होते हैं और Right. कुछ भी होता है, तो पर अगर वो नहीं केयरफुल रहते हैं एंड दे आर जस्ट इन द फ्लो, दे ईट समथिंग वेरी हार्ड एंड उनको फिर वो दो दिन बाद या एक दिन बाद रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड सेंसिटिविटी हो रही है या फिर दर्द हो रहा है. Right. पहली तो बात why you should avoid it to do that, and second अगर हुआ है तो क्यों डिनाई नहीं करना चाहिए एंड डायरेक्टली आप लोगों के पास आना चाहिए. अब वो Okay. बताओ. सो जिसके में कैप्स लगे उनके बारे में पहले बोलती हूँ. सो जिनके कैप्स है, दे शुड जनरली अवॉइड चिक्की, च्युइंगम, एनीथिंग दैट इज टू स्टिकी. ओके. या बिकॉज वो कांस्टेंट प्रेशर च्युइंगम कर्व्स पे आते रहता है, राइट, एंड इट इज अच्छा. लिटिल स्टिकी. स्निकर्स, कैरमल पॉपकॉर्न, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है बिकॉज वो भी एक जो कैप इज सीमेंटेड विद अ डेंटल सीमेंट. ओके, देयर इज ऑलवेज अ चांस कि अगर इसका स्टिकीनेस ज़्यादा रहेगा तो उसके साथ वो बाहर निकल के आ जाएगा. ओके, सो आइडियली यू आर सपोज टू अवॉइड दी सर्टेन थिंग्स. 4-5 चीज़ें उतना अवॉइड कर लो. और कभी निकल भी जाता है फॉर दैट मैटर. ऐसे बहुत बार होता है, फ्लो में खा लेते हो, कैप निकल जाता है. विद इन 2-3 days कम टू अस, वील फिक्स इट. बट इफ़ यू वेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप बोले अभी 10 दिन के बाद जाएंगे, तब तक वो दांत वहाँ से मूव हो जाता है. द टूथ हैज़ अ टेंडेंसी टू मूव एंड देन द सेम कैप विल नॉट फिट. यू विल हैव टू मेक अ न्यू वन. ओके. या सो दिस इज फॉर कैप्स. हाँ, फॉर नॉर्मल पीपल लाइक आप होटल में गए, यू ईटिंग समथिंग, या घर पे खाना खा रहे हो. एक बेसिक एग्जाम्पल, कंकड़ आ गया. हाँ. करेक्ट, आपने चबा दिया उस पर. सो वो कंकड़ का इम्पैक्ट क्या हुआ है दांत पे, 2 चीज़ें हो सकती है. 1, एक माइनर क्रैक छोटा सा हो गया दांत में, छोटा सा पार्ट फ्रैक्चर हो गया, एंड नाउ द टूथ इज एक्सपोज, लाइक एनामल ब्रेक हो गया, द डेंटिन इज एक्सपोज. तो अब आपको सेंसिटिविटी होती रहेगी. ओके, इफ़ यू कम इन टू दैट टाइम, हम देखेंगे एंड वी विल जस्ट फिक्स दैट रीजन बाय आइदर गिविंग इट अ फिलिंग और जस्ट थोड़ा सा उसको ट्रिम कर देंगे. ठीक है, क्योंकि वो शार्प एज भी छूट सकता है उसमें आफ्टर द ब्रेकेज. या कभी ऐसा होता है आप कुछ ज़्यादा ही हार्ड खा लो. पीपल ट्राई टू ब्रेक वॉलनट्स, और पीपल ट्राई टू ओपन द बियर बॉटल का जो लिड्स है, दे ट्राई टू ओपन इट विद देयर टीथ. अब इस चक्कर में क्या होता है, बट पीपल, सो मेनी पीपल डू इट. इट्स सपोज्ड टू बी कूल. या, इट्स नॉट कूल. एंड वो सीधा टूथ हो जाता है फ्रैक्चर. Exactly. People should know this. Once it's fractured, we can't do anything. You have to get that tooth extracted, जो कि आपका इतना अच्छा healthy tooth था. See? You have to get it extracted. फिर वही injections लगवाओ and then tooth Don't extraction. make it sound so.
tooth extraction. I went through that. Oh my God. बचपन में अभी नहीं. But my So God. yeah, these two things can happen. तो इसके लिए आप अगर आके दिखा दोगे फ्रैक्चर कितना किस एक्सटेंट तक है, वी कैन फिगर इट आउट एंड वी कैन ट्राई टू गिव यू अ बेटर सोल्यूशन. क्या बेस्ट है उस सिचुएशन में. To avoid all this, how frequent a healthy person should visit dentist? हाँ, तो ये है कि 6 months to a year is generally Every advised. 6 months at least. आपके सिर्फ ओरल हेल्थ के लिए नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी इट्स इफेक्टिव. मतलब आप सिर्फ आओगे तो आई विल नॉट जस्ट टेल यू अबाउट द कैविटी और द गम हेल्थ और एनी ओरल कैंसर रिलेटेड इशू, बट आई विल ऑल्सो हेल्प यू टू अवॉइड द पेन दैट कैन हैपन इन फ्यूचर. मेरी जितनी फीमेल पेशेंट्स आती है हु आर लाइक 40 प्लस, दे से अ डेंटल पेन इज वर्स देन अ डिलीवरी पेन. Oh my God. Yes, they've always said that. Really? Yes. Really? तो जिसने एक्सपीरियंस किया है उन्होंने बोला है that delivery was much easier than this pain that we have been going through. But we are talking about natural delivery. That I don't know, but they've always said the delivery वाला pain is कुछ नहीं dental pain के सामने. किया है तो obviously easy रहेगा, but I can't imagine, man. Yeah. I mean, you should ask some people. They have given this feedback. और बहुत लोगों से सुना है, not just my patients. I've my heard God, this. it's that worse. It's really bad. Tooth pain is really bad. I mean, And also we can help you save a lot of money if you come in earlier. It won't burn a hole yes, in your pocket. absolutely. There's a saying कि dentistry is not expensive. It's the negligence that costs you. Yeah. Wow. So on point. This was so on point. Exactly, na. Later on, what happens is if you do not get it done, ज़्यादा और procedures करने पड़ते हैं. Right. Expensive भी हो जाते हैं. Pain ज़्यादा होता है. Right. Everything is Everything ज़्यादा. is exaggerated. But मुझे ये पूछना है कि why do people why are people afraid to go to dentist? I mean, मैंने थोड़ा ज़्यादा dentist के बारे में देखा है, पता है Yeah. कि वो बहुत ज़्यादा paranoia में रहता है कि मतलब even my family they are fine. I think it's but everywhere. other people I've seen कि बहुत ज़्यादा होता Anxious है. होते हैं. I think मैं भी आती हूँ उस कैटेगरी में. Why to lie? थोड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तब मैं खुद तक डॉक्टर, बट आई डोंट नो व्हाई इज दिस. ओके, तो मे बी जो लोग जिसका ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस रहा है, दे कन्वेड टू यू दैट वे कि ओ डेंटल ट्रीटमेंट्स आर वेरी ट्रॉमेटिक. बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, इंजेक्शन देते हैं. नाउ द किड्स हु कम टू अस, माँ बाप पहले ही डरा के लेके आ जाते हैं कि इंजेक्शन लगेगा, जबकि इंजेक्शन वाला कोई प्रोसीजर होना नहीं है. बट द पेरेंट्स ट्राई टू स्केयर द चिल्ड्रन कि अगर आप ब्रश नहीं करोगे तो आपको इंजेक्शन. एंड दे एंटर द क्लिनिक, दे स्टार्ट क्राइंग बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन फियर कि अभी अंदर जाके तो इंजेक्शन ही मिलने वाला है. सो दैट इज द काइंड ऑफ फियर दैट इज इंस्टिल्ड, आई फील, फ्रॉम द पीपल अराउंड. बट दिस इज तो किड्स का हो गया, बट देन व्हाट अबाउट द एडल्ट्स? आई मीन, आई नो पीपल आर अफ्रेड ऑफ द पेन टॉलरेंस कम रहता है किसी किसी का. वो आई एग्री, उनका फिर डरना इज फाइन क्योंकि पेन टॉलरेंस किसी का इतना कम होता है कि राइट. थोड़ा पिंच भी. आई मीन, आई हैव सीन माय siblings are there, तो they cannot take the pain of needle as well, राइट. so they start feeling dizzy. It's like that for that pain intolerance. करेक्ट. तो वो ठीक है उनके लिए, तो I understand, but then what about the other people? The most feared thing is the injection. Getting an injection in अबे your mouth. पहले थोड़ी लगाएंगे यार. बट वही उनको वही लगता है कि एवरी प्रोसीजर में इंजेक्शन लगना ही है, बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. बट या, Please tell it to people कि हम पहले सिटिंग, आप आओगे, हम कभी पहले इंजेक्शन and for हम देखेंगे. fillings we never give an injection. We have an example here, you can ask him. For अच्छा. fillings you don't require an injection. Right. For cleaning you don't require an injection. Injection is only for an extraction or a root canal procedure. Right. And हाँ. तो ये वो fear ज़्यादा है injections का, is what I've come to understand.
और ऑल्सो वन मोर थिंग, फियर ऑफ अननोन. क्या करेंगे पता नहीं. वी कांट सी व्हाट द डेंटिस्ट इज डूइंग. वी डोंट नो व्हाट दे आर गोइंग टू डू इनसाइड आवर माउथ. And we can't speak when they're doing something. And we can't see See it. I think that is That the is the main major fear. because when you can see something हाँ. it just becomes less Less. fearful when you're known to it. Right. यहाँ पे क्या चल क्या चल रहा है. You just keep on imagining scenarios in your head कि पता नहीं अंदर दांत में क्या हो रहा क्या हो रहा surrender. So हो सकता है. हो सकता है. That's why people don't turn up for dental हाँ. checkups. One of the reasons. So एक और बहुत बड़ा subject है about dentist. I mean you guys might be coming across is people with tobacco and people with smoking, people with और क्या होता है, पान, I guess पान, सुपारी. Yeah. तो ये सारी चीज़ें जो डेली कंज्यूम करते हैं लोग और ओरल हाइजीन, आई एम नॉट श्योर कि कितना ओरल हाइजीन रख पाते होंगे, बट जितना भी रख पाते हो और जो लोग बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हो, आप अभी पहले तो बता दो कि ये सब जो कंज्यूम कर रहे हैं क्या इफेक्ट हो रहा है राइट ऑन द ओरल हाइजीन. सेकेंड, how is this a serious problem later on? फिर देखते आगे. So basically ये सारे habits you have to quit. Okay. But Yes. obviously आप you're so habituated to that thing. You can't. आप dependent हो उस पे. Unless and until you decide that you want to do. और आप उस चीज़ के लिए वर्क करें, यू टेक प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस फॉर दैट, वो नहीं छूटेगा. ठीक है. दूसरी चीज़ कि जो ये टबैको खाते हैं, एनी फॉर्म ऑफ टबैको, दिस पीपल हैव अ हैबिट ऑफ कीपिंग इट इन योर माउथ इन पॉकेट्स, लाइक जो बकल सल्कस होता है आपका, कहीं पे एक पॉइंट पे वो रख के छोड़ देते हैं उसको. ओके. एंड उसका जो जनरेट होता है सलाइवा, दे जस्ट कीप ऑन ड्रिंकिंग इट ऐसे. अच्छा. हाँ. तो वो निकोटिन से हाई देखे. सो ये जो रखते हैं वो टबैको, वो है ना एसिड होता है. इट्स लाइक कॉजेज एसिड प्रोडक्शन. ओके. एंड जहाँ पे जिस प्लेस पे वो रखते हैं इट बिकम्स नम. राइट. ओके. सो दे अगेन कीप इट ऑन द सेम प्लेस सो दे डोंट फील एनीथिंग. उसी प्लेस पे रोज रोज रखेंगे. तो कितने टाइम के लिए नम हो जाता है? जस्ट फॉर few hours ऐसे numbness फील होगा. उसके बाद वो उनको आदत हो जाती है. नाउ दे आर हैबिचुएटेड ऑफ कीपिंग इन द सेम स्पॉट. बट नाउ द टिश्यू इन दैट रीजन इज इरिटेटेड. ओके. अच्छा. जो आपका बकल सल्कस है उसका जो टिश्यू है वो इरिटेशन हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस केमिकल. अच्छा. एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ केमिकल, राइट. तो वो इरिटेशन की वजह से इट स्टार्ट्स टू चेंज इट्स कलर. ओके. It kinds of become numb और उसका वो color change हो जाता है. Now what you see after a good amount of time is a white patch. Now this white patch is something called as lichen planus और leukoplakia बोलते हैं इसको. So वो is a precancerous thing. It's a first sign. Really? Yeah. Wow. सो अगर आप ऐसी एक स्पॉट पे कुछ रख रहे हो तो वहाँ पे आपको हमेशा चेक करना है दैट कैन यू सी सम वाइट पैच. एंड इफ यू सी समथिंग लाइक दैट, बड़ा होता है वो डिपेंड्स आप कितना रख रहे हो, राइट. अच्छा. जितना रखेंगे वो अमाउंट उतना एंड देन हाँ पैच होगा. एंड देन फिर कभी कभी लोग अलग अलग जगह पे रखते हैं, सो यू कैन स्पॉट इट ऑल अराउंड. तो उनको रियलाइज नहीं होता है बिकॉज वो नम हो जाता है, राइट. नो पेन, हाउ विल यू कम टू नो? There is absolutely no pain for that. और ये I don't understand the concept, but anyways, ये जो करते हैं इनकी दांतों पे क्या असर होता है? So this is about the gums. It's generally on the soft tissues. अच्छा. गम्स पे होगा. सॉफ्ट टिश्यूज पे अराउंड टंग हो सकता है, आपका बकल म्यूकोसा हो सकता है. टीथ पे इतना नहीं. बट अगेन अगर आपके गम्स खराब है तो धीरे धीरे आपके दांत भी चले ही जाएंगे. या एंड म्यूकस सिक्रीशन
आई थिंक वो पूरा ही खराब हो जाता होगा। ये म्यूकस सिक्रेशन का आप थोड़ा सा ये बता दो कि हाउ म्यूकस सिक्रेशन इज इम्पोर्टेंट पहले तो, और ये कंज्यूम करने के बाद वो कैसे कम हो रहा है और व्हाट इट इज लीडिंग टू। सो जब भी एसिडिक मीडियम होता है, आई थिंक आपका सलाइवेशन इंक्रीजेस। सो मुझे लगता है दे आर ओवर यूज्ड व्हेन इन सच केसेस हाई अमाउंट ऑफ सलाइवेशन हो जाता है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, एंड यस, क्योंकि जैसे आपने नींबू लिया विच इज़ एन एसिडिक मीडियम, सो इनिशियली आपका सलाइवेशन इंक्रीजेस बट फॉर दैट्स दैट बिकॉज ऑफ मीडियम। विटामिन सी, राइट? आई डिडंट गेट यू। आई मीन जब हम लोग हाँ, नींबू खा रहे हैं, राइट। एक्स्ट्रा सलाइवेशन होता है बिकॉज ऑफ द विटामिन सी और टैंगीनेस। या बट द Because it's सलाइवेशन, हाँ, एसिडिक ही है वो एट द एंड ऑफ द डे, राइट? सो द सलाइवेशन इंक्रीजेस, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही सलाइवेशन कम होने लगता है, ओके, इन सच केसेस, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ड्राई माउथ. And when you have dry mouth, your cavity is your oral health is more exposed to like getting exposed to cavity. मतलब cavity होने का ज़्यादा chances है उसमें. अच्छा, तो ड्राई माउथ होगा आपको। आप जब पान तंबाकू खाते हो, देर इज समथिंग कॉल्ड एज ओरल सबम्यूकसिस फाइब्रोसिस। तो आप जो इजीली ये ओपन कर सकते हो, इलास्टिसिटी कम हो जाता है आपका। माउथ ओपनिंग धीरे 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 धीरे, इट विल बी राइट नाउ इफ यू कैन पुट 4 fingers in your mouth, that would be only restricted to 1 finger. really? Yes, and that's when you'll have to do a surgery. Of? Like the jaw, यहाँ पे injections देने पड़ते हैं आपको, and try to open the jaw surgically, because only सिर्फ एक चम्मच जा पाएगा आपका, like only नहीं, ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली कि why is it केराटिनाइज हो रहा है पूरा। जो म्यूकोजा है, जो इलास्टिक है अभी, which is normal, it's getting keratinized. So that's why these habits in the long run will give you issues. अभी starting में नहीं पता चलता है, probably you're young, your body is taking it. But after a certain age, these things will start showing up. Okay. And same goes with smoking or smoking की different? Smoking में gingival issues ज़्यादा होते हैं। मतलब gingiva is in the gums. Sorry. Okay. Yeah. तो वो gums में issues ज़्यादा start हो जाते हैं। There is some thing called as smoker's palate, जो आपके palate पे you can see Palate as in the hard top. palate? हाँ, Okay. hard palate पे आपको you will start seeing some change in the keratinization of the tissue. Decolorization basically. अच्छा. So also that is precancerous. So ये सारी चीज़ें add on हो जाती है. Oh. Yeah. So we Okay. try to counsel the patients, but beyond a point, unless and until they are ready to leave it, you can't really do anything about it. But हाँ, ऐसे कुछ अगर precancerous patients detect होते हैं, तो we ask them to get a biopsy done. Okay. और वो biopsy से पता चल जाता है कि is it cancerous or not. And how is a person supposed to, मतलब क्या signs and symptoms रहेंगे उस चीज़ के? तो ये एक मेजर चीज़ है जो लोग इग्नोर करते हैं। When something is troubling you or irritating you, your tongue or your cheek, जैसे आपका कोई शार्प टूथ है which is troubling you, okay? मतलब चुभ रहा है आपको, like अच्छा, जैसे एक अच्छा. कील है, हाँ, आपको हाँ, वो रोज वही चुभने जैसा कुछ दर्द हो जैसे रहा होगा. आपको विजडम टूथ आता है तो वो कीप्स हर्टिंग यू। आई डोंट नो इफ एवर Yes, yes, हाँ. हाँ, तो वैसे कुछ वो फील होता रहता है कंटिन्यूस। अगर आप उसको इग्नोर करते जाओ तो आपके गम्स को या जो भी म्यूकोजा है आपको कंटिन्यूस इरिटेशन हो के इट लीड्स टू कैंसर। सो दैट इरिटेंट जो है उसको हटाना है। जो भी शार्प टूथ है पहले आप उसको ट्रिम कर लो या निकाल दो, जो भी है उस टाइम पे। सो वो एक चीज़ आपका सॉर्ट हो जाएगा। Okay, so that is one. दैट इज़ वन। एंड सेकेंड लाइक अगर किसी को डिस्कलरेशन है, अभी यूजुअली लोग इतना डिस्कवर नहीं करते हैं व्हेन आई थिंक स्पेशली दोज क्राउड हु आर नॉट दे जस्ट वांट टू अवॉइड डिस्कवरिंग देयर तो इनको ये खुद ही अवॉइड कर रहे हैं। तो एट व्हाट पॉइंट डू दे आई मीन दे कैन फील कि ओके ये अलार्मिंग वाला सिचुएशन है, इधर डेंटिस्ट के पास जाओ
या फिर हाँ डेंटिस्ट के पास ही जाना पड़ेगा। डेंटिस्ट के तो पास ही जाना पड़ेगा। तो ये ऐसा कौन सा पॉइंट आता है जहाँ पे इट बिकम्स अलार्मिंग फॉर पीपल? दे सी सम अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन द माउथ। ऐसे ना कॉलीफ्लावर काइंड ऑफ ग्रोथ दिख सकता है आपको, या दिखता है? हाँ कुछ केसेस में अच्छा। यू सी समवेयर लाइक अ कॉलीफ्लावर काइंड ऑफ ग्रोथ, और बिकॉज दीज थिंग्स आर पेनलेस राइट, तो आपको पता नहीं चलता, आप इग्नोर करते हो उसे। ओके, इट्स पेनलेस। हाँ। माय गॉड, नो सम सिम्टम्स। ग्रोथ्स आर पेनलेस, और जो पेनलेस होता है वही सबसे ज़्यादा और ये खतरनाक है। ग्रोथ का कलर क्या रहेगा यूजुअली? इट्स अ रेडिश पिंकिश, रेडिश टू पिंकिश, लाइक आपके गम्स से थोड़ा सा, मतलब उसमें ब्लड फ्लो थोड़ा ज़्यादा होता है, सो दे अपीयर अ लिटिल मोर रेडिश। तो लाइक यू नो रैश काइंड ऑफ जो। No, you can actually see a tissue, extra tissue growing. It's अच्छा। not just a rash. ओके। हाँ, दूसरी चीज़ होती है आपको बहुत तीखा जल्दी लगता है, लाइक यू नो स्पाइसी आप टॉलरेट नहीं कर पाते, अच्छा। वो एक साइन है दैट यू कैन लुक फॉर। ओके, दिस इज अ वेरी गुड वन कि आप को चीजें बहुत स्पाइसी स्पाइसी लगने लगेंगे। लगती है, योर ओके, स्पाइस टॉलरेंस इज यू नो रिड्यूस्ड, आप स्पाइसी चीज़ें रियली? नहीं खा सकते। या और ये हमेशा होता है, होने लगता है, या फिर कैसा, क्या इसकी फ्रीक्वेंसी होती है? सो जिसको एक बार स्टार्ट हो जाता है ना, हम्म। वंस इट स्टार्ट्स, तो ये बहुत डिफिकल्ट है उसको मैनेज अच्छा। करना। या But then I've seen people who consume a lot of spice, but they're fine with it. प्रॉबेबली उनको वो नहीं आया है अभी तक। ओह अच्छा। हाँ, डेंटिस्ट फील्ड में मुझे आप ऐसे कुछ इनोवेशन या न्यू टेक्नोलॉजीज जो आई है मार्केट में, एंड इवन फॉर डेंटिस्ट एंड फॉर पेशेंट, पहले आप डेंटिस्ट का बता दो फिर पेशेंट का बताओ कि क्या ऐसे Okay. न्यू Technologies टेक्नोलॉजीज आई आए है। एंड पीपल शुड Okay. बी, एंड एवरीवन शुड। डेंटिस्ट तो आई थिंक हो जाते हैं अपडेट, पेशेंट्स नहीं हो पाते हैं। आई थिंक दोनों के लिए है, बट लेट मी जस्ट टेल यू। yes, ओके, yes. सो 2023 में ऐसे बहुत ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज आई है, Okay. which is in terms it's very effective, precise and efficient. Okay. Okay. तो ये एक दो टेक्नोलॉजीज जो अभी इंट्रोड्यूस हुई है, वन इज 3D प्रिंटिंग। ओके, तो पहले क्राउन्स जो होते थे, डेंटल क्राउन्स, वो वी यूज टू टेक अ मेजरमेंट, सेंड इट टू द लैब, फिर वो मॉडल पोर होता था उसका, एंड द लैब टेक्नीशियन यूज टू वर्क मेकिंग द वैक्स पैटर्न, फिर वो कास्ट में जाता था, फर्नेस में जाता था, एंड फिर वो बन के आता था। दैट्स हाउ इट यूज टू बी। नाउ विद दिस 3D प्रिंटिंग मशीन, वो मॉडल चला जाता है प्रिंटिंग मशीन में, एंड इट्स मिल्ड ऑन द स्पॉट। वो वहीं से 3D प्रिंट होके क्राउन बाहर आ जाता है, एंड इट्स अ मैटर ऑफ हाफ एन आवर you have a Oh, crown wow. prepared. Yeah, so this is the technology which has been like recently we've started using it. And how much time it used to take पहले? पहले अगर हम काम देते थे to the lab technician, we used to get it back in 4 to 5 days, and now it's Wow. like cut to few hours. What a breakthrough. Yeah, that's why I told you. Wow, very nice. Okay. The second one is 3D scanning or impressions, you know, 3D impressions. So पहले होता था 3D, sorry. impression making. What like, is exactly 3D impression? So पहले ऐसा होता था when you have to make a crown, एक डेंटल ट्रे होता था, आप उसमें क्राउन भी थोड़ा समझा दो, because कैप people- लगाते हैं हम क्राउन टू प्रोटेक्ट द टूथ। मेटल होता है, सिरेमिक होता है। अच्छा, So पहले मेटल लगाते थे हाँ, लोग, पहले gold मेटल, के। पहले गोल्ड होता था, हाँ, फिर मेटल आया, नाउ इट्स सिरेमिक। ceramics। अच्छा, तो वो क्राउन की बात चल रही क्राउन है। की बात Yes. चल रही है, हाँ। सो जब भी कुछ क्राउन बनाना होता है, पहले ऐसा होता था, एक मेटल का ट्रे होता था, उस पे आप एक गूई मटेरियल डालते थे, एंड देन यूज्ड टू प्लेस इट इन द पेशेंट्स माउथ। ओके, फिर वो सेट होता था, फिर उसको निकाल के हम लैब भेजते थे। इट्स लाइक वो एक मेजरमेंट ले लिया। मेजरमेंट्स लेने का प्रोसीजर था ये पूरा। ठीक है, अब ऐसा है, देयर इज अ स्कैनिंग 3D. मशीन। वो स्कैनिंग मशीन आप पूरे ओवरऑल यू मूव इट अराउंड योर माउथ, इमीडिएटली इट्स गेट स्कैन्ड एंड आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में आ जाता है। ओके, एंड देन यू जस्ट हैव टू सेंड दैट फाइल टू द लैब टेक्नीशियन, एंड इट्स डन। वाओ। सो हैसल फ्री हो गया, कंफर्टेबल हो गया, क्योंकि जब आप इम्प्रेशन लेते हो, पेशेंट फील्स लाइक गैगिंग, इट्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल बिकॉज अ फॉरेन मटेरियल इज देयर इन योर माउथ।
So now that is gone as well. So ये दो चीज़ें हैं, प्लस जो हम ट्रेडिशनली जो ब्रेसेस करते थे, that has been, it's still there, people do it because cost effective है वो, but something called as aligners have come in. So aligners का वही same again, you take a scan, सारा उनका ट्रीटमेंट प्लानिंग सारा उसमें हो जाता है in the you know computer, they do it everything, the planning, and आपको पूरे set of aligners साथ में दे देते हैं. They give you whole set of aligners. You just have to keep on changing every 15-20 days, and you reach the desired smile or the aesthetic that you wanted over a span of like in 8 to 10 months, 12 months. अच्छा, अब बेसिक थोड़ा डिफरेंशिएशन बता दो कि ब्रेसेस और अलाइनर्स में क्या है, लाइक बेसिक की पॉइंट्स जो अलाइनर्स में हुए हैं, और इफ वी मे इफ वी कैन, लाइक विच इज बेटर ब्रेसेस. ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव एक बिग पॉइंट है उसमें, लेकिन अगर आप रेकमेंड करना चाहोगे किसी को तो ब्रेसेस रेकमेंड करोगे या अलाइनर्स, और क्यों? Okay. So for very simple cases, aligners work wonders. Really? Okay, yeah. जो अगर बहुत माइनर स्पेसेस है तो अलाइनर्स अपना काम कर लेगा, बट जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, जिसमें बहुत ही क्राउडिंग है टूथ का, या बहुत ही दे आर प्लेस्ड वेरी डिफरेंटली. Okay. So in that place, the customization where the orthodontist will put certain kind of pressure on that particular tooth. और ऐसा एक दांत नहीं होगा, उसमें बहुत सारे दांत होंगे जो हेवाया है. So then the orthodontist will make sure every month वो थोड़े थोड़े changes करके उसको सही करे, which is also possible in you know aligners. Okay. But the result थोड़ा सा compromise हो जाता है उसमें, unless and until in the aligners. अच्छा. ऐसे complicated cases जो होते हैं, Okay. certain complicated cases you cannot do it with aligners. Wow. And ब्रेसेस फिर क्यों लोग अभी भी कर रहे हैं? अच्छा, कॉस्ट इफेक्टिव. सो आप क्या रेकमेंड करना चाहोगे लोगों को? I mean, it's totally on If your. people can afford. If you can afford, go for aligners. क्योंकि क्या है, visibility, right? Everyone is conscious And you about. can carry with. You can take it along with you. And you can take it out also. Yeah, you have to remove it while you're eating. You cannot chew on it. अच्छा. हाँ. And ये braces के साथ नहीं होता था? Braces वैसे ही रहेंगे. So extra जो efforts डालने पड़ते थे, you have to clean every time you're eating something, right? And फिर wow, nice. So this is one technology जो बहुत advanced हो गई है अभी. Yeah. I think ये 2020 जो लॉकडाउन था शायद उस टाइम पे काफी फेमस हुआ, या when did this come in market? So ये मार्केट में मुझे लगता है 3-4 साल से तो होगा, बट अवेलेबिलिटी हमें, because those machines are so expensive, like one unit is somewhere 40 lakhs or something. The milling machines I'm talking about, the lab technicians who buy it. So that अभी हमें तो हमारे लैब वालों ने अभी इंट्रोड्यूस किया है, because not everyone could have afforded it that time. Yeah. So now they can. But then yeah, this is very nice. This is good for not just us, the patients as well, क्योंकि convenience है, इतना precision है उसमें कि कोई fault होने का chance नहीं है. Directly from patient's mouth, it's gone directly into the computer. And I think अगर कोई elderly people भी है who wants to put, उनको I just ठीक है, they just want some aligned teeth or you know something. तो कैसा होता था कि अरे अभी कौन braces लगाएगा, but now you can put aligners as well, right? Aligners as well. It's not कि अभी तुमको कुछ देखना है कि okay age है नहीं है, just it's so easy out there. Wow, crazy, beautiful. Okay, so we'll talk a little bit about nutrition. Right. What all nutrition is required to have healthy oral hygiene plus healthy gums? Right. Like certain foods, आप क्या recommend ज़्यादा करते हो? So a balanced diet is important, not just for your oral health, but आपके overall health के लिए बहुत ज़रूरी है. So balanced diet with along with certain minerals.
So when I say minerals, I would say calcium and phosphorus is very important for teeth. Right. And the best source for calcium would be milk, cheese. For people are lactose intolerant. Yeah, the new things, yes. And I would say almonds, Okay. green leafy, Vegetables. and yogurt, plain yogurt. Yes, yogurt. Yes, plain. Very, Yes, that is important. And phosphorus आपको मिल जाएगा मीट में, dairy products, Okay. fish. That is the way you get your phosphorus. But अगर कोई vegetarians है तो उनके लिए Probably then supplements is what you'll have to work on. What if we like about the plant-based milk and if we include everything in diet, so thoda everything you're consuming somehow, so you are basically filling that nutritional value. Does that happen? Or To what extent? Like, I will not come to know the exact amount, and depends right? on the, I think, digestion Digestion also. as well. Yeah. How much is getting कितना absorbed absorb in हो the रहा है. Yeah. right. And fresh fruits and vegetables also. तो क्या होता है, जैसे ही आप fresh fruits and vegetables लोगे, आपका salivation increase होता है. Okay. And it also helps in cleansing of the teeth. Like वो है ना, acidity थोड़ा neutralize कर देता है. This is green this is vegetables basically. Yes. And fruits से you will get your vitamin A and C, जो आपके gums के लिए बहुत अच्छा है. A and C. Yeah. Vitamin A and C, guys. Yeah. Healthy gums, vitamin A and C. So that, and I think you cannot ignore water. Water is the best, I would say the best friend for your teeth. So आप generally keep sipping water. आपका oral cavity जितना moist रहेगा, उतना अच्छा रहेगा. So rather than drinking 2-3 liters, अब जैसे होता है पानी पीना है, आप पी लेते हो फटाफट 2-3 glasses. Rather than just buy a bottle, sip a bottle and keep sipping onto water. That's what I generally recommend. This is a very nice point. Yeah. This is a very nice point. People who do not like water can include some lemon. Can they? With lemon, I will not recommend lemon on daily basis. Not lemon as in orange slices. That it can, fruity water, the alkaline water. Yes. That can be done. It is healthy. It is good for your health. But Like क्या for है ना, oral health के लिए, I would say whenever you're drinking anything acidic, sugary, aerated, try to drink it with straw. The reason being, आपके direct contact में नहीं आएगा liquid. Like it will not come in direct contact with the tooth surface. अब straw से जब पियोगे, it will go directly in. Wow. So, Revelation. I mean, I personally love tangy foods. Okay, so I'm like big on raw mangoes, and I'm big on the see, if you're tangiest- eating fruits, that's fine. But Okay, when you're fruits are having fine. juices, Okay. that's when. So सब कैसे होता है ना, आप सुबह सुबह उठ के गर्म पानी में नींबू डाल के पीते हो, right? लोग करते हैं ये बहुत कॉमनली प्रैक्टिस्ड है ये. तो इसमें क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका एनामल वेयर ऑफ होगा ही, क्योंकि रोज एसिड आके उस पे लग रहा है. और फिर वो भी ब्रश करने के बाद कर रहे हो. Shit. So that is why. You know what I thought? When you brush, it's like a coat forming on your teeth, so that जब तुम कुछ भी खाओगे, तो it's not gonna attack your teeth. That's what I felt till now. But I forgot this fact that I don't know why I forgot this, but there are living microorganisms in your mouth as well, because in this there are like don't get disgusted, please, but 6 million. Yes, to give exactly. you a precise. Salivas. So your saliva has microorganisms, and you're eating something. It's going to react. It's going to produce things. Why do not people think about this? you know, it's so out there. Right. It's so simple.
बट ये बहुत ही थोड़ा ये वाला कंसेप्ट है कि बचपन से किया है ब्रश till start when you start the day, Right. and people have a habit of like, so maybe it's a nice revelation. थोड़ा चेंज करने में टाइम लगेगा, बट दूसरी एक चीज़ ऐसे बोलूँगी कि रिंस आफ्टर एवरी मील इफ़ यू कांट ब्रश तो नहीं करेंगे आफ्टर एवरी मील, बट जस्ट rinse, and this is such a nice option to brush after breakfast, because people who are working, correct, I mean, imagine the horror. Okay, guys, whoever is working now, you know the secret of healthy people's smile and oral hygiene. Hello. Correct. Wow, crazy. आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो और आपने एंड तक ज़रूर देखा हो। ये पॉडकास्ट बहुत ही ब्यूटीफुल था मेरे लिए। मुझे काफ़ी, हम जब बात कर रहे थे, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हम लोगों ने शेयर किए जो आई थिंक आउट ऑफ नोवेयर थे, और एक ऐसी कनेक्टिविटी हम बहुत जल्दी कभी लोगों से फील करते हैं। यू नो, जब नम्रता केम ऑन द सेट, हमें दोनों को पता नहीं था कि कैसा होगा पॉडकास्ट, और नम्रता, एज शी विल सी, शी ऑल्सो नोज कि शी वॉज वेरी टेंस्ड, एंड इवन आई वॉज। जैसे ही हम लोग मिले, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एनर्जी एक्सचेंज कि हम इंस्टेंटली कंफर्टेबल हो चुके थे, और दैट्स हाउ वी रिकॉर्डेड द पॉडकास्ट। आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, क्योंकि हमें एज अ पर्सन भी काफ़ी लोग जब मिल जाते हैं, एक वो फ्रेंड फॉर लाइफ आई थिंक मिल जाती है, तो शी बिकेम लाइक अ फ्रेंड फॉर लाइफ और अ सोल सिस्टर, आप जो भी बोल लो। आई एम सो लकी टू मीट सच पीपल, एंड थ्रू सच पॉडकास्ट आई थिंक ऐसे गेस्ट को मिलने मिलता है जो दिल से इतने अच्छे हैं, जो ब्यूटिफुल सोल्स हैं, एंड आई होप कि ऐसे ही मिलते रहे और ऐसे ही आप लोगों के लिए हम ब्यूटीफुल पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते रहे। तो चलो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, बाय बाय।